Hello and welcome everyone. In this video, we'll be moving one step forward in the very first chapter. That's topic number 1.12 and 1.13. Okay, so the very first one is related towards the last topic of the dipole. And in fact, we have seen so far what is the meaning of electric dipole. We have seen the electric field on the axis of the electric dipole. Also, we have seen the electric field on the equatorial line of the electric dipole. So now in this video we'll be looking forward to the behavior of dipole in a uniform electric field. Means how does a electric dipole behaves when it is kept in uniform electric field. We'll be looking forward to this particular topic. So let's proceed. Topic number 1.1, that's dipole in a uniform electric field. अच्छा, तो इसमें आपको करना क्या है? What we have to do in this? Yeah, first of all we have to take a uniform electric field. So by means of uniform electric field, we mean that the electric field lines must be parallel to each other and must be equidistant from each other. Okay, so let us say the electric field which we are having is like this way, in positive y direction to be very precise, right? So we can get the idea about it. Okay, this is the uniform electric field. Let us say its value is vector E. Direction is as mentioned in the figure. So what we have to do now? We have to keep an electric dipole, and this we have to see how does electric dipole behave when it is kept in an uniform electric field, in a uniform electric field. Okay, so yeah, let's keep it. Let us say we are having dipole like this way. Okay, we are well aware of it. What do you mean by electric dipole? It is a system of positive and negative charge. Let us say this is minus q charge and this is positive q charge, right? And this being the center of the electric dipole. Okay, we also know one vector in terms of as far as electric dipole is concerned. What is that vector? That vector is electric dipole moment. हम जानते हैं electric dipole moment कहाँ से कहाँ होता है? From negative charge to positive charge. Okay, so we can indicate it, right? ऐसे indicate कर सकते हैं हम लोग, यूं ऐसे अलग से indicate कर सकते हैं, या तो फिर डाइपोल के एक्सिस पर भी हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं. ये अच्छी टेक्निक्स है, राइट? कई बार हम ये डाइपोल ड्रॉ ही नहीं करते, कई बार हम ऐसा ही ड्रॉ कर देते यूं ही. We say directly it's vector P. Yeah, it's very easy to understand. Why? You will get it by the concept of electric dipole. अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव. तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा. तो ये पूरा ड्रॉ करने की भी आवश्यकता नहीं है. ओके, सो या डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज टुवर्ड्स this side. Yeah, we can say it's like vector P. Also we can see that neither the dipole moment is perpendicular nor parallel. It is making some angle with what? Electric field. Electric field के साथ ना ही ये dipole moment ऐसे perpendicular है, ना ही ये ऐसे parallel है. ये कोई एंगल बना रहा है. मान लीजिए वो एंगल थीटा है, right? Let us say that angle is theta to be very precise. This angle being theta. Don't worry about it. Yeah, we can deal with it easily. And we also know that the distance between minus q and plus q charge is twice a. So what I am doing is I am just mentioning half of its value. Right? क्योंकि अगर उधर ड्रॉ करूँगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी फिगर. सो आई एम कीपिंग इट क्वाइट सिंपल. अच्छा, तो हाँ, अब इसको शॉर्ट आउट करना है कि भाई अगर मैंने डाइपोल मतलब ऐसे डाइपोल को यहाँ पे रख दिया
तो उसके साथ क्या होगा, मतलब उसका क्या होगा ऐसा भी बोल सकते हैं। हालांकि डायपोल को कुछ नहीं होएगा, मतलब तहस नहस नहीं हो जाएगा, सिर्फ या तो वो हिल सकता है या तो वो घूम सकता है, वहीं पे रहेगा क्या, मतलब वी विल सी बिहेवियर ऑफ इट, राइट? So how will it behave in this particular electric field? So first of all, you have to recall the concept which I told you regarding the charge in the field. हम जानते हैं ना कि अगर हम कोई भी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर। We know F is equal to QE, जितना फोर्स लगता है ना, ये सिखाया था अच्छे से आपको। अगर फोर्स की डायरेक्शन ढूंढनी हो तो वो भी आसानी से ढूंढते थे हम लोग। कैसे? if it is a positive charge, the direction will be in plus E. If it is negative charge, the direction will be in negative electric field direction, right? Okay. So yeah, we are aware of it. So we can directly show that thing also in this particular figure, right? So be careful about what, in which way I am drawing actually. So this is the plus Q charge. प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगता है? F इज इक्वल टू क्यू ही लगता है। कहाँ पे लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, सॉरी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर है, तो ये चार्ज पे फोर्स कहाँ पे लगेगा? वी कैन से लाइक दिस वे, इट विल बी एक्टिंग अपसाइड। सो वी कैन मेंशन आल्सो दैट इट इज प्लस क्यू ई। वी कैन आल्सो मेंशन दैट द वैल्यू ऑफ इट इज प्लस क्यू ई, दैट्स द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज। एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज द फोर्स एक्टिंग विल बी, अगेन मैग्नीट्यूड तो उसका क्यू ई ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन माइनस ही है। क्यों? क्योंकि इट इज अ नेगेटिव चार्ज, सो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना वो इस तरफ लग रहा है। वी कैन से इट इज माइनस क्यू ई फोर्स। बी केयरफुल अबाउट हाउ आई एम ड्राइंग इट, राइट? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे वी कैन डायरेक्टली सी कि इलेक्ट्रिक डायपोल पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? सिंपल है भाई, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, टोटल इज जीरो। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब उस पर कोई फोर्स लगता नहीं है। नेट फोर्स, सॉरी कोई फोर्स नहीं, नेट फोर्स नहीं होता है, मतलब नेट फोर्स जीरो होता है। कैसे? वो मैंने समझा दिया आपको। अच्छा, तो पहले यही चर्चा हम लिख देते हैं फटाफट से, राइट? सो एंड देन विल बी मूविंग फर्दर इन दिस सेम टॉपिक। As shown in figure, how to write down the theory? You must be very capable of constructing the theory as far as the concept is concerned. अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम पड़ जाए तो आप थियरी को बना सकते हो, राइट? मतलब ऐसे ही जैसे अपने ड्रॉ करा, जैसे अपने इंक्लाइन करा, जिस तरह आपने फोर्स लिखा, वो आपको सिर्फ लिखना है, शब्दों में लिखना है, राइट? तो एज शोन इन फिगर, consider an electric dipole, consisting of plus q and minus q charges separated by two a distance. Separated by two distance. Okay. It is kept in such a way in the uniform electric field vector E that the dipole the dipole moment vector मतलब P is making an angle theta with vector E। जो जो वहां ड्रॉ करा है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, as simple as that. Now next point, talk about the forces. Now the force, okay, the force is acting
on plus q and minus q charges are excuse me, plus qe and minus qe respectively. And their directions are as shown in figure. Right, the directions are as shown in figure. उसका मैग्नीट्यूड मैंने लिखा प्लस क्यू माइनस क्यू और उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी है वो मैंने हमने फिगर में दिखाई हुई है. राइट, अच्छा, क्लियरली the net force acting on the dipole is F net is equal to, we can say like this way, plus QE plus minus QE. Yeah, definitely it will be a zero vector. We can say it is zero vector. Yeah, it's zero. That is net force is zero. अच्छा, नेट फोर्स जीरो है. अगर किसी चीज पे फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होएगा? सिंपल है सर, फोर्स नहीं लग रहा है तो हिलेगा नहीं. हाँ, वही है, इट वोंट मूव लीनियरली. आपको इतना प्रिसाइसली बोलना है कि अगर कोई चार्ज पे फोर्स नहीं लग रहा है या तो फिर कोई सिस्टम पे फोर्स नहीं लग रहा है तो वो सिस्टम हिल नहीं सकती, सिर्फ लीनियरली हिल नहीं सकती. मतलब ये वाला इसके कारण ये ऊपर नहीं जा सकता, ना कि इसके कारण, और सॉरी, इसके कारण नीचे नहीं आ सकता. मतलब डाइपोल ऐसे के ऐसा ही रहेगा ड्यू टू दिस टू फोर्सेस के कारण इंडिविजुअली इट वोंट मूव. अच्छा, सो या वी कैन राइट ऑन दैट थिंग आल्सो. हेंस डाइपोल will not move linearly, or we can say that is linear displacement of dipole will be zero. Yeah, वो zero होगा. Simple. एक ही पॉइंट को दो तरीके से लिख सकते हो. या इट्स योर चॉइस. ये थोड़ा क्वालिटी वाला स्टेटमेंट है और वो मैंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है. हालांकि थियरी एकदम करेक्ट है. डोंट वरी अबाउट राइटिंग इट इन एनी ऑफ द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन. राइट, स्कूल की एग्जामिनेशंस में भी लिखोगे तो भी सही लिखेगा, मतलब सही होएगा. और बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी ये थियरी करेक्ट ही है. ये इतना इसलिए लिखा क्योंकि ये कई बार एमसीक्यू में ये पॉइंट पूछा जाता है. कौन कौन सी चीज़ें वो लोग पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. शब्द को बहुत ध्यान से समझना. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम होती है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम होती है, इसलिए तो उसको यूनिफॉर्म बोला जाता है. राइट, इट्स कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैन से लाइक दैट वे. दैट्स व्हाई दिस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड नेट इज जीरो. बट देखिए भाई, नेट भले ही जीरो हो, नेट फोर्स भले ही जीरो हो, लेकिन इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शंस देखिए. द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स, दिस लाइन ऑफ एक्शन मतलब इसको ये फोर्स कौन सी लाइन पे लग रहा है. तो ये QE वाला फोर्स कहाँ पे लग रहा है? ये लाइन पे लग रहा है ना. और ये माइनस QE वाला, सॉरी प्लस QE वाला, ये लाइन पे लग रहा है. अब दोनों की लाइन ऑफ एक्शन, एक की लाइन ऑफ एक्शन नीचे है, दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन ऊपर है. सो द लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट कोलिनियर. एक दूसरे मतलब एक ही लाइन में नहीं है, पहली बात. और तो और ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है. या बोथ आर पैरेलल. एक ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है. इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पैरेलल टू ईच अदर, डेफिनेटली दे विल कंस्ट्रक्ट अ थिंग. वो एक चीज बनाएंगे जिसको हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जिसको हम कपल की तरह से आइडेंटिफाई करते थे. या डेफिनेटली दिस टू फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एंड पैरेलल टू ईच अदर, दे विल फॉर्म अ कपल. अगर कपल एक्ट हो रही है तो मतलब कपल का मतलब क्या होता है? टॉर्क लगेगा. राइट, ये चीज माना कि ये चीज हिल नहीं सकती, लेकिन
ये घूमेगी तो सही ना, ये घूमेगी सही, किसकी वजह से घूमेगी, कपल की वजह से घूमेगी. सो वी कैन से लाइक दैट वे, या वी कैन मेक इट, वी कैन टॉक ऑफ दैट एक्सपेक्ट ऑल्सो, राइट. हिलेगी नहीं लेकिन घूम सकती है, वही बातें करेंगे हम. बट लाइन ऑफ एक्शंस, but line of action of both the forces are different and anti-parallel to each other. Anti-parallel का मतलब तो आप जान गए होंगे, पैरेलल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है. Anti-parallel to each other. So they will form a couple because forces are equal in magnitude. Forces का magnitude equal है और anti-parallel है. Therefore मतलब कपल का मतलब क्या होता है, टॉर्क. वो तो मतलब टॉर्क कितना लगेगा, पहले मैग्नीट्यूड की बातें करेंगे, फिर क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर है तो वेक्टर भी मैं अंत में लिख दूंगा, राइट. कॉन्सेप्ट है उसमें भी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होएगा रे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होएगा, याद करिए 11th स्टैंडर्ड क्या सीखा था हमने. In order to find out magnitude of torque, take a magnitude of any of the forces. कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस. इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस. या सो आई एम राइटिंग इट इन वर्ड्स सो यू विल गेट इट एंड यू विल, आपको याद आ जाएगा 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था हमने. सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स मल्टीप्लाई बाय perpendicular distance between the forces. Perpendicular distance between the forces, as simple as that. अच्छा, अब देखिए magnitude of torque. Yeah, we can say symbolically like this way. That symbol torque तो tau symbol से denote करे जाते हैं ना हम लोग. So magnitude of any one force. कोई भी एक force का magnitude ले लीजिए. हालांकि दोनों का magnitude क्या है? Same, QE. इसका भी magnitude QE, इसका भी magnitude QE है. So we can say it is QE. What's the perpendicular distance between these two? इन दोनों के बीच में perpendicular distance कितना है भाई लोग? तो यही ढूंढना थोड़ा ट्रिकी है और यही ढूंढना आपको आना चाहिए. तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए आप बहुत शांति से समझने की कोशिश करना. अच्छा, perpendicular distance मतलब क्या? ये distance perpendicular distance तो नहीं है, definitely नहीं है. तो कोई भी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर देना, मतलब perpendicular distance is the shortest distance. Be careful. Yeah, we are well aware of it also. So we can draw like this way. Yeah, we can say as if this line. So this is nothing but the perpendicular distance. Let us give them a particular name so that it will be easier for us to find out. So let us say this is point M and this is point N. Yeah, this is point O. We can say M and O. Yeah, just for information. So we can say perpendicular distance between them is given by Mn. दो फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो Mn से डिनोट करी जाती है. अच्छा, ये Mn हो मतलब Mn ही ढूंढना है आपको. तो देख लीजिए Mn को कैसे ढूंढे. अगर Mn को ढूंढना है तो ये पूरी चीज़ तो आपको मालूम ही है, ये A था और ये भी A था, मतलब ये पूरा का पूरा 2A है. अगर ये थीटा है, देख लीजिए ये लाइन के साथ ये वाला, ये लाइन के साथ ये वाला, अगर एंगल पे फोकस करना अच्छे से आना चाहिए आपको. It will be very easier for you to understand later on. अच्छा, so yeah, how to do it? So this is theta and we need to find out Mn. So how we will crack it up? ये पूरा 2 है, मैं फिर से साइड में ट्राइंगल ड्रॉ कर ले रहा हूँ सिर्फ, जिसके तहत आपको मालूम पड़ जाए. राइट, ये M है, ये N है और ये O है. ध्यान से देखोगे तो ये 2A है. राइट, ये अपने को ढूंढना Mn ही है, लेकिन ये थीटा जो है वो थीटा को कैसे मतलब कैसे इंक्लूड करोगे आप. ये थीटा जो है यहाँ पे,
ये तीन में से कौन सा एंगल थीटा होगा, राइट? इट्स ट्रिकी वन, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। तो कैसे करें देख लीजिए आप, मतलब कोई भी तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। या डेफिनेटली मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स अच्छे से आएगा अगर आपको, तब आप ये इजीली सॉर्ट आउट कर दोगे। देखो मेरे को तो हालांकि दिख रहा है ये सब, ये this, check it out, this line and this line, it's definitely making a z, so we can say if this is z, sorry this is theta, so the internal angle will be also theta। अरे वो थीटा ही होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली इट विल बी। दिस लाइन वर्टिकल लाइन के साथ p जो है वो थीटा बना रहा है, वर्टिकल लाइन के साथ p जो है वो थीटा बना रहा है। और तरीके से भी देख सकते हैं, आपकी विजुअलाइजेशन चाहिए, राइट? मैं कैसे समझा सकता हूँ, देखो यार, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये p है, p देखिए ये ही p है, और e कहाँ पे है? ऐसे ऊपर है, p और e के बीच में एंगल थीटा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी थीटा बनेगा ना, राइट? इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरा काम था समझाना, तो मैंने आपको थोड़ा हाईलाइट करा दिया कि ये एंगल कैसे थीटा बना। बहुत तो तरीके हैं इसको समझने के, लास्ट आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हो। चलिए, तो ये ढूंढना है ना, दैट्स एम एन इज क्वेश्चन मार्क। तो थीटा की सामने वाली साइड ढूंढनी है, सामने वाली साइड मतलब साइन से जाना है अपने को, बिकॉज पहले से ही ढूंढ लेते हैं। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट मतलब एम एन अपॉन हाइपो मतलब 2a, क्योंकि ये 90 है, राइट? तो ये एम एन कितना बन जाएगा? अरे एम एन कितना बन जाएगा? 2a साइन थीटा। थोड़ा अच्छा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, 2a और q को एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 2aq इंटू e इंटू साइन थीटा। अबे 2aq की वैल्यू क्या होती है? p, सो वी कैन से pe साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू pe साइन थीटा। वन विल से सर ये तो देखे हुआ, मतलब देखा हुआ है, सॉरी, this we have already seen। हालांकि आपने ये टॉर्क का इक्वेशन नहीं देखा, लेकिन ऐसा फॉर्म देखा हुआ है, ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, राइट? वेक्टर प्रोडक्ट में आता था ना कि whenever you are having ए बी साइन थीटा you can write out it as a क्रॉस b, राइट? लेकिन इसमें a क्या है और b क्या है? तो कोई बोलेगा सर आपने p पहले लिखा है तो p ही a है, राइट? सो वी मस्ट बी राइटिंग इट p क्रॉस e, राइट? तो मैं टॉर्क को p क्रॉस e ही लिख सकता हूँ। गलत बात है भाई, अगर मैंने EP साइन थीटा लिखा होगा, अगर मैंने EP साइन थीटा लिखा हुआ होता तो आप क्या E क्रॉस P लिखते? तो आप गलत हो जाते ना। ऑफिशियली क्या आंसर है, राइट? वो मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, मतलब दोनों चॉइसेस अवेलेबल है, इधर यू कैन राइट डाउन लाइक दिस वे, और टाउ इज इक्वल टू, सॉरी, टाउ इज इक्वल टू E क्रॉस P, राइट? टेकिंग जजमेंट फ्रॉम दिस वन, मतलब इसके हिसाब से हम जजमेंट ऐसे ले सकते हैं ना, लेकिन कौन सा सही है? क्योंकि वी हैव सीन वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, तो सर कैसे डिसाइड करे कि कौन सा सही है? ये वाला सही है या तो फिर ये वाला सही है? बोलिए, इजी है। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि ये जो डाइपोल घूमेगा वो कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, तो वो तो हम फोर्स से आसानी से मालूम कर सकते हैं। कैसे सर मालूम कर सकते हैं? देखिए, ये फोर्स, एक फोर्स नीचे है, नीचे वाला ये ऊपर है, सो मतलब इसके तहत अपना जो डाइपोल है वो कैसे घूमना चाहिए? यूं, राइट? मेक अ क्लोज लूप, यहाँ से यहाँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, तो वेक्टर की डायरेक्शन बाहर आनी चाहिए, यूं, इट मस्ट कम आउटसाइड। सो जो अपने को आंसर आउटसाइड दे वो अपना सही आंसर है। चेक इट आउट, P क्रॉस E चेक करिए, P कहाँ पे है? ऊपर, P ऊपर है, और E कहाँ पे है? ये वाला इस तरफ है ना, तो मेरे को ये उंगलियां किस तरफ घुमानी पड़ेगी? यहाँ से यहाँ। अगर यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज ही है ना, तो उंगली बाहर ही आएगी, मतलब अंगूठा। मालूम पड़ रहा है? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
लेट्स चेक इट आउट दी अदर केस. E क्रॉस P देखिए, E यहाँ पे है, E is this way ना, and P is downward. So if we will think of E cross P, then it will be clockwise and it will be going in. That is wrong. We must obtain it anti-clockwise. मतलब the vector must come outside ना. So for this case it is coming inward. So this is 110% wrong. This is not the right answer. The right answer is tau is equal to P cross E. इतना अच्छे से आपको आना चाहिए, right? यही कारण है कि जिसकी वजह से ये घूमेगा. सो वी कैन से व्हेनेवर डायपोल इज केप्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ नेट फोर्स जीरो है, हाँ ये भी मान लिया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन उसके ऊपर टॉर्क लगेगा जिसकी वैल्यू P क्रॉस E आएगी. P E साइन थीटा बोल सकते हैं हम लोग. डेफिनेटली इट विल मूव द डायपोल. तो ये मूव किस तरफ करेगा रे? हर वक्त आपको ऐसा ही याद रखना है और ऐसा ही होता है. टॉर्क का काम है डायपोल को रोटेट करना. कब तक? जब तक वो अलाइन ना हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना जाए तब तक वो घुमाएगा. क्यों? उसके पास मतलब उसके पीछे भी एक रीजन है. देख लीजिए, ये ऐसा है ना, अभी तो ये घूमता 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 यहाँ पे आ जाएगा, तब बंद हो जाएगा रोटेट करना. क्यों? क्योंकि उस वक्त कंडीशन क्या हो जाएगी, देख लीजिए आप. ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल भी ऊपर, मतलब नीचे चार्ज है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू. इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे, इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर. सो बोथ फोर्सेस आर कोलिनियर नाउ. एक ही लाइन में आ गए, तो एक लाइन में आ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है उसका घूमना. फॉर टॉर्क टू एक्ट द फोर्सेस, द इक्वल फोर्सेस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर बट separated by some distance. Yeah, then only then torque will act. Right? तो याद रखना है ये टॉर्क का काम क्या है. टॉर्क का काम है उसको रोटेट करना. कब तक रोटेट करना? जब तक वो अलाइन ना हो जाए. राइट? बहुत सारे एमसीक्यूज इसके अंदर से आते हैं. ये सिंपल बिहेवियर था इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? उसी डायपोल का बिहेवियर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे. बट अगेन important from MCQ point of view. Right? So first of all, note down this thing. Okay, so now we'll be saying behavior of electric dipole in a non-uniform electric field. Definitely non-uniform electric field मतलब क्या होती है कि वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती है. राइट? द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट. राइट? इट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मान लीजिए अपने पास, अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऐसी दी हुई है. This is electric field E. Yeah, definitely I must not write down like this way, but you can see that this is the non-uniform. Non-uniform दिख रहा है आपको कि ये lines कैसी uneven है, yeah, not parallel to each other. पहली बात, अगर इसी कंडीशन में मैं अगर कोई डायपोल को रख दूं, राइट, लेट अस से वी आर कीपिंग डायपोल लाइक, सिंपल रखते हैं, पहले छोटी सी बात कर लेते हैं. चलिए ये और ये ऐसा कर देते हैं. मतलब मान लीजिए ये माइनस क्यू चार्ज है और मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है. राइट? तो मेरा प्रश्न डेफिनेटली नेट फोर्स की बात होगी और टॉर्क की बातें होगी. राइट? मैग्नीट्यूड वाइज. राइट? मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, सॉरी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क. अगर आपको पूछ लिया जाए ये कंडीशन में डायपोल पर नेट फोर्स कितना होएगा, जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा. राइट? स्क्रीन पॉज करिए और सोचिए. अब देखिए एफ नेट, अगर इसकी बात करें ना तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, अभी डेफिनेटली द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज विल बी टुवर्ड्स दिस वे एंड दिस द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज विल बी टुवर्ड्स दिस वे. बट इफ यू विल फोकस ना, ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज वो ऐसे रीजन में है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या कम है. Here the electric field is more or less. The more it is crowded,
जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो हम बोल सकते हैं ये वाला चार्ज क्यू मोर स्ट्रेंथर इलेक्ट्रिक फील्ड के पोर्शन में है। तो ये वाला फोर्स अगर मान लीजिए ये वाला 10 है ना, तो ये 10 से कम ही होगा, 8 मान लीजिए। तो ऐसे ऐसे आपको समझना क्या है, क्या अब नेट फोर्स लग रहा है? हाँ डेफिनेटली लग रहा है। सो नेट फोर्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट इक्वल टू जीरो। कितना होता है वो तो बात की बात है, वो तो डेटा के अनुसार हम ढूंढ सकते हैं। व्हाट अबाउट टॉर्क? अगर आप टॉर्क की बातें करेंगे तो एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम लाइन। अगर सेम लाइन पे है तो बात ही खत्म। प्रेजेंटली टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, बट इट इज नॉट ऑलवेज, ये इस परिस्थिति का मतलब इस कंडीशन का आंसर है। मान लीजिए यही डाइपोल मैं यू रख देता तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो प्लस क्यू पे फोर्स यहाँ पे लगता ज्यादा वाला, नेगेटिव पे छोटा वाला यहाँ पे लगता। दोनों फोर्स एक दूसरे से पैरेलल है, भले ही इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन पैरेलल है। ये टॉर्क लगाएगा, कितना लगाएगा वो तो बात की बात है, मतलब इट इज नॉट जीरो ऑलवेज, समटाइम्स इट बिकम जीरो। फोर्स इज ऑलवेज जीरो, फोर्स इज ऑलवेज नॉन जीरो। मेरे हिसाब से आपको मालूम पड़ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? सो बी केयरफुल, दे आर आस्किंग लाइक दिस वे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is kept in non-uniform electric field, right, the torque acting on it may be or may not be zero, force is always non-zero। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए अच्छे से। आपको ऑप्शंस ऐसे कॉम्प्लेक्स दिए होंगे कि आपको डिसीजन लेना अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा और डिटेलिंग कर रहा हूँ। मतलब मान लीजिए कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ फिर से मैं, राइट। अरे हाँ, अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये वाला डाइपोल कहाँ पे घूमेगा, अब अभी तो ये लिनियरली मूव होगा ना, कहाँ पे मूव होगा? राइट साइड जाएगा कि लेफ्ट साइड जाएगा? राइट साइड 10 न्यूटन फोर्स है, यहाँ पे 8 न्यूटन, ऑब्वियसली इट विल मूव, सॉरी, डाइपोल विल मूव राइट साइड, एज सिंपल एज दैट, इट विल मूव राइट साइड, राइट। अब इसकी बारी, इलेक्ट्रिक फील्ड वही की वही रखते हैं, सिर्फ थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग। जब माइनस क्यू यहाँ पे रखा था, अब माइनस क्यू वहाँ पे रखते हैं हम लोग। मान लीजिए माइनस क्यू यहाँ पे है और प्लस क्यू यहाँ पे है, तो प्लस क्यू के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? राइट साइड फोर्स लगेगा। माइनस क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो अपोजिट साइड फोर्स लगेगा, कि ये वाला ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्ट्रेंथर इलेक्ट्रिक फील्ड पोर्शन में है। तो अगेन टॉर्क लगेगा, टॉर्क विल एक्ट, यस डेफिनेटली टॉर्क विल एक्ट, whether net force will act or not, होगा कि नहीं होगा? होगा रे, definitely it is non-zero। which side it will move? left side ज़्यादा है ना, it will move left side। तो इतना आना आवश्यक है, आपको इतना आना आवश्यक है कि जब हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तब क्या कंडीशन होएगी, राइट। सो इट मस्ट बी वेरी क्लियर। अभी ये क्यों पढ़ा है, इसके पीछे एक रीजन था, राइट। लेट अस सी इट वेरी फास्टली। ओके, सो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडा क्यों पढ़ा है आपको? क्योंकि आप बहुत समय से सुनते आ रहे हो ना कि व्हाट विल बी द केस, मतलब व्हाई इट इज हैपनिंग व्हेन वी रब द कॉम्ब विद आवर ड्राई हेयर। अगर हम ड्राई हेयर के साथ अपना मतलब कॉम्ब को अगर हम घिसेंगे अगर, तो वो पेपर को अट्रैक्ट क्यों करता है? उसके पीछे ये रीज़न है, राइट। बिकॉज देयर इज समथिंग वी कैन से, कुछ ऐसा होता है इसके अंदर जिसके तहत वो अट्रैक्ट होता है। वो क्या होता है वो आपको अच्छे से मतलब समझना चाहिए। ये पूछे ना पूछे वो अलग की बात है, राइट। फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, फॉर मेकिंग योर फिजिक्स लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। लेट अस से वी आर हैविंग अ कॉम्ब, या अपने पास बहुत बढ़िया वाला बहुत बड़ा सा कॉम्ब है, राइट। चलिए मान लीजिए यही कॉम्ब को हमने घिसा अपने बालों में, राइट। ड्राई हेयर पे अगर हम इसको रब करेंगे तो वी नो चार्जेस गेट ट्रांसफर फ्रॉम ड्राई हेयर टू कॉम्ब। कॉम्ब कैसे नेगेटिवली चार्ज होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मतलब हर एक क्या बोलते हैं उसको,
टू बी वेरी प्रिसाइज वो टीथ, या सॉरी, टीथ ऑफ कॉम्स यार। तो हर एक टीथ पे इक्वल चार्ज नहीं आएगा। हर एक टीथ पे इक्वल चार्ज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने जब उसको रब किया तो ऐसा ऐसा नहीं रब करा है। हर एक भाई चलो एक दांत मतलब एक टीथ को अच्छे से पहले रब करा फिर दूसरे, ऐसा नहीं करता हम लोग। वी आर रबिंग इट अनइवनली, दैट्स व्हाई द चार्जेस आर गेटिंग ट्रांसफर्ड अनइवनली। So let us say that charges are getting transferred like this way. Okay, so what we shall do is, let us take piece of papers. Right, piece of papers. Definitely we know that piece of paper are electrically neutral. हालांकि कॉम्ब भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही था जब उसको घिसा नहीं गया था। जैसे ही घिसा आपने वो नेगेटिव चार्ज बन गया। तो जैसे हम इसको नज़दीक लाएंगे ना, इसको क्या होगा रे? बहुत सिंपल है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते हो ना, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो मान लीजिए मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है ना उससे। मान लीजिए ऐसी है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी, चार्जेस आर हियर मोर ओवर हियर, दैट्स व्हाई इट विल कम मतलब मोर क्राउडेड टुवर्ड दिस वे। फील आ रही है मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब तो जब इसके नज़दीक लाएंगे ना, जैसे ही कॉम को इसके नज़दीक लाएंगे, ये वाला अचानक से एक्टिव हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा? वो ऐसे अलाइन हो जाएगा जिसके तहत ये नेगेटिव है तो उस ये पेपर का पॉजिटिव पोर्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज अभी भी न्यूट्रल ही है। मतलब हर बार आपको ऐसा नहीं समझना है अट्रैक्शन इज बिटवीन, अट्रैक्शन डेफिनेटली अट्रैक्शन इज बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, बट देखिए ये नेगेटिवली चार्ज और ये न्यूट्रल है फिर भी अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन ये अट्रैक्ट हो रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बिहेवियर की वजह से। दिस इज अ डाइपोल ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, राइट। तो इसी का कारण अब ये देखिए प्लस चार्ज पे फोर्स कहाँ पे लगेगा? ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव पे नीचे। डेफिनेटली टॉर्क इज जीरो, दैट्स व्हाई ये गोल गोल नहीं घूमेगा, लेकिन ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होता है इसलिए ये चिपक जाएगा, इसलिए ये चिपक जाएगा। दिस इज द बिहेवियर ऑफ, या वी कैन से इन डिटेल में समझाया। हालांकि आपकी बुक के अंदर बहुत कम कंटेंट में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने स्पेंड करा है अपना प्रीशियस टाइम इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपको एक ही रीज़न है इसके पीछे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम पड़े, राइट। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसी के बेस पे एक सम है एक्सरसाइज 1.10 which is very easy, which is quite often asked as MCQ, right? very important MCQ और very easy MCQ, right? very easy MCQ, आप यूं ही सॉल्व कर सकते हो उसको। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आपको डाइपोल मोमेंट दी हुई है, right? how to solve it? डाइपोल मोमेंट is P is given to you, sorry, how much it is? 4 into 10 raised to minus 9 coulomb meter is aligned at an angle 30 degree with the direction of uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। सो वी कैन से थीटा इज गिवन टू यू एज 30 डिग्री। एंड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया है। भाई आप क्या डिमांड करोगे रे? सारी की सारी चीज़ तो डायरेक्टली दी हुई है। सो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। या वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, yeah, it is the case of uniform electric field, that's why we are directly we can say PE sin theta। P कितना है? 4 into 10 raised to minus 9। E कितना है? 5 into 10 raised to 4 sin 30 डिग्री। 5 4 जा 20, अब देख लेना मैं भूल ना करूँ। या 5 4 जा 20 into 10 raised to minus 5 तो ये है, और sin 30 is 1/2, so it will get cancel out, you will get the answer as 10 raised to minus 4। यूनिट क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर, राइट। जूल इसका यूनिट है। फिर से एक बार चेक कर लेना मैंने कोई गलती ना करी हो ऐसे। 10 raised to minus 9 और 4, ये -5 और ये तो एक कैंसिल हो जाएगा, दैट्स राइट। या दैट्स 10 raised to minus 4 जूल। या सो ऑल्सो नोट इट डाउन दिस वन,
एंड दिस वन ऑल्सो, दिस वन टू बी रिटन फर्स्टली, ये पहले लिखना है आपको, और इसके नीचे आपको थोड़ी एक दो लाइन अपने शब्दों में लिखनी है, राइट। इट्स योर चॉइस व्हाट टू राइट। आप मेरे शब्दों को सुनोगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। एंड देन यू हैव टू राइट डाउन दिस एक्सरसाइज सम नंबर 1.10 फास्ट। ओके, सो नाउ टॉपिक नंबर 1.13। ये 1.13 के अंदर ये 3 बेसिक टर्म आती है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये 3 टर्म का यूज़ हम एप्लीकेशन हम जब लास्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर का, मतलब ये नेक्स्ट वीडियो में ही नेक्स्ट वीडियो में ही वो टॉपिक की बातें करेंगे हम। तो ये तीनों के तीनों डेंसिटीज जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, टू बी वेरी प्रिसाइज। ये लाइन के लिए है, ये सरफेस के लिए है, ये वॉल्यूम के लिए है। तो ये लाइन, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम अप्लाई करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में, जो आपका 15th टॉपिक है। ये फिलहाल 13th का टॉपिक है। ये डेफिनेशन के तहत ही आपको समझनी है, बहुत आसान है समझने के लिए। सो आई हैव रिटन द क्वेश्चन ऑल्सो, एक्सप्लेन द लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड ऑल्सो द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, एक चीज़ आवश्यक है कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, वो जब मैं एक एक चीज़ें समझाऊंगा आपको क्लियर करता जाऊंगा। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लाइन, वी कैन से पर यूनिट लेंथ, वन डायमेंशनल है इसलिए अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्यों सीखते हैं हम लोग, राइट। सो लेट अस से आई विल गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन है, राइट। इसके ऊपर मैंने चार्जेस को रखा है यूनिफॉर्मली। व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस, मतलब यूनिफॉर्मली में या तो फिर कंटिन्यूअस। मान लीजिए इसके ऊपर प्लस चार्जेस रखे मैंने, राइट। और ये भी मान लीजिए मैंने ऐसा बोल दिया आपको कि इसकी लेंथ 4 मीटर है। इसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर। अगर मैं आपको बोलूं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 कूलम पर मीटर है, if the linear charge density of this wire, this line is 2 coulomb per meter, what you will understand कि 1 मीटर में कितना चार्ज है, 2 कूलम। 1 मीटर में कितना चार्ज है, 2 कूलम। दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर में 2 कूलम, तो अपने पास कितनी मीटर है, 4 मीटर। तो 4 मीटर में कितना कूलम हो जाएगा, 8 कूलम। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। अभी इसका सिंबल क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा सिंबल से, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा सिंबल से, और इसको हम डिनोट करते हैं रो सिंबल से। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल लैम्बडा, एंड लैम्बडा इज नथिंग बट टोटल चार्ज ऑन द लाइन पर लेंथ ऑफ द लाइन। या दैट्स व्हाट, आप इस तरह से देखिए इसको, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। नीचे जो चीज़ आती है ना, हम नॉर्मल चीज़ है, कोई भी चीज़ को डिफाइन करनी है, अगर डिनोमिनेटर में वो आती है तो हम उसको यूनिट ले लेते हैं ना। दैट्स व्हाट द अमाउंट ऑफ चार्ज per unit line, sorry. So what's the unit, coulomb per meter, that's unit coulomb per meter। और डायमेंशन फॉर्मूला तो आनी ही चाहिए, कूलम की क्या होती है, I into T के तहत A1 T1, and that's symbol is sigma Q upon A because it is per area and there per volume। Yeah, we can also find out the unit and dimension formula। ये बहुत चीज़ें आसान है, इसका कोई एग्जाम्पल देने के लिए आवश्यकता नहीं है। अगर आप फिर भी सोच रहे हो तो मैं बोल देता हूँ। चलिए, मान ले कोई रैंडमली सरफेस अपना, और मैं इसका एरिया आपको दे देता हूँ। मान लीजिए इसका टोटल एरिया है 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया। और मैं अगर बोल दूँ कि भाई इसकी सिग्मा मतलब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगेन 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर है, 1 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी। इसका मतलब क्या, 1 मीटर स्क्वायर में 1 कूलम। अपने पास कितना एरिया है, 6 मीटर स्क्वायर, तो 6 मीटर स्क्वायर में 6 कूलम। ऐसे ही पर मीटर क्यूब इसमें होता है, राइट। होप सो इट इज़ वेरी क्लियर। जैसा मैंने लिखा है आपको ऐसा ही आना चाहिए। हालांकि इसको हम आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और वैसे अलग कॉन्सेप्ट के अंदर भी बताया है, लेकिन वो आपको सीखना आवश्यक नहीं है। इसके बाद में वो कंटेंट डेफिनेटली कवर हो जाएगा, राइट। मेरे हिसाब से इतना आपको आना चाहिए। ये डिफरेंस के मीडियम से मैंने आपको समझाया हुआ है, राइट। सो फटाफट से ये नोट कर लीजिए जैसे मैंने लिखा है।